इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली हैं, ठीक है, और इसकी क्या कहते हैं, it's let's just have a discussion about it because this is something that we've studied before as well. So what is the most common causative virus of infectious mononucleosis? Just like sit on your mind, let's talk about it. EBV. Yeah, EBV. And what other infections can also cause infectious mononucleosis? CMV. Yeah, CMV also causes it. Okay, so for like the purpose of our study, EBV is the most common and CMV also causes it. इसके अलावा भी बहुत सारे इसके causes हैं, but these are the two main ones. ठीक है ना? अच्छा, ये सबसे common इसकी presentation adolescents or young adults में होती है. Because इसका जो transmission है, it says especially college students, इसका transmission जो है it's through infected saliva. So like kissing or in our case sharing food and stuff जो hostel में रहते हैं, ठीक है, most of the adults we have already been infected with EBV, लेकिन हमारे अंदर वो disease नहीं cause करता है, ठीक है, और ये usually उन लोगों में disease cause करता है या फिर क्या कहते हैं, या फिर बच्चे हों, ठीक है, who get like pharyngitis and stuff, या फिर जब आप immunocompromised हो जाए, जब आपको HIV या इस तरह की कोई immunocompromised state हो जाए, तो then it might reactivate, ठीक है, but most of us are just carriers. All right, फिर incubation period बताया हुआ है. All right, इसकी ना हम clinical features देखते हैं और इसकी complications, which is the main thing that you're tested on. ठीक है, एक तो fever हो जाता है and pretty high fever भी हो सकता है. उसके अलावा जो sore throat होता है साथ में, and again वही जो typical malaise, myalgia, weakness वगैरह है, वो typical इसके symptoms आते हैं, but these may linger for several months. So what was another virus that we did yesterday, जिसकी fatigue जो थी वो long lasting थी, similar to this one? Coronavirus. Yeah, we did coronavirus, जिसकी fatigue similarly काफी long lasting है, इसकी भी fatigue काफी long lasting है, ठीक है. Signs इसमें lymphadenopathy, and I want you guys to remember कि posterior cervical lymph nodes can be like are mostly enlarged, लेकिन anterior वाले भी हो सकते हैं, लेकिन जो posterior वाले हैं ना वो काफी ज्यादा enlarged होके painful और tender हो जाते हैं. So posterior cervical lymph nodes may be quite enlarged, painful and tender, and इसके अंदर जो tonsillar tonsils है ना वो भी बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं और वो बहुत एक ज्यादा पेनफुल pharyngeal जो है pharyngitis होता है, और इस pharyngitis में ये है कि there's a lot of exudate, ठीक है, erythema तो present होगा ही, but there's a lot of like exudate, और अभी हम question stem में भी देखेंगे how they have you know how the patient has presented with all of that exudate. Splenomegaly भी हो सकती है present in half of the patients. अच्छा, इसकी splenomegaly ऐसी है कि the spleen becomes very very soft, right? तो the problem with that is कि जब patient को ये EBV का infection चल रहा है, तो हम patient को advise करेंगे कि do not go into contact sports because splenic rupture का बहुत ज़्यादा chance हो जाता है, ठीक है. तो इसकी splenomegaly especially याद करने वाली, क्योंकि इसकी जो आप management लिखेंगे तो उसके अंदर आपने लाजमी mention करना है कि patient को advise की जाए कि no contact sports, वरना splenic rupture का chance हो जाएगा बहुत बड़ा. Then we have a maculopapular rash, और ये मैं बताती हूँ. Okay, suppose आपके पास एक patient आया है, इसके clinical features पूरे हो गए. No, let's just complete the clinical features. Hepatomegaly हो सकती है 10% cases में, ठीक है, और in comparison अगर CMV cause होगा तो उसके अंदर hepatomegaly के ज़्यादा chances होते हैं, ठीक है. उसमें splenomegaly और cervical lymphadenopathy थोड़ी कम होती है, hepatomegaly के ज़्यादा chances होते हैं CMV वाली में, लेकिन EBV वाली में chances ऐसे कम ही है, ज़्यादा ऐसे splenomegaly हो रही है 50% patients में, और posterior cervical lymphadenopathy बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है. उसके अलावा in very few cases palatal petechiae and eyelid edema भी हो सकता है, तो इस तरह they might give you like a very rare presentation, ठीक है. अच्छा, I want to tell you, अच्छा आपके पास जैसे patient present किया है, maybe like you know a boy 14 years old, उसके tonsils बहुत ज़्यादा enlarged और inflamed हैं और red भी हैं और उसको ऐसे cough वगैरह होगी, whatever the symptoms are. तो what like the first thing that you would obviously think is some kind of bacterial cause, है ना. हम लोग मतलब ऐसे infectious mononucleosis is a pretty far-fetched thing to think. अगर आपके पास इस तरह का patient present हो रहा है, तो अक्सर क्या होता है कि they get mistaken for bacterial pharyngitis, ठीक है, जैसे उनका चलो स्ट्रेप्टोकॉकस
वाला फ्रेंजाइटिस है, तो उन्होंने उनको दे दी एम्पिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन, ठीक है, उनको कोई भी पेनिसिलिन इस तरह दे दी, तो उसके बाद उनको उसकी वजह से मैक्यूलोपैपुलर रैश हो गई। डिप्थीरिया भी यू कैन कंफ्यूज इट विद, हमारे यहाँ बिकॉज मतलब खैर हमारे यहाँ डिप्थीरिया भी हो सकता है बिकॉज वो कवर्ड होंगे, सूडो मेम्ब्रेन वगैरह होगी, तो एक्सुडेट से आप उसको कंफ्यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये बुक जो है ये यूएस की है, तो वहाँ पे तो अक्सर को डीपीटी लगी होती है, बट फॉर अस यस डेफिनेटली वी माइट कंफ्यूज इट विद डिप्थीरिया। ऑलराइट, तो उनको हमने दे दिया, ठीक है, कोई बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस समझ के हमने उनको अमॉक्सिसिलिन ये वो दे दी। उसके बाद उनको एक इची पैपुलोमैकुलर रैश डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो इची रैश डेवलप होगी, एक तो उसकी कंडीशन सही हुई भी नहीं, उसके अलावा उसको रैश भी होगी इसके बाद डेवलप, बहुत ज़्यादा इची वाली और बहुत इनकन्वीनियंट किस्म की। तो फिर आपका फिर नेक्स्ट डायग्नोसिस ये आपने सोचना है कि मे बी इट्स इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है, अगर इनिशियल उस तरह की ट्रीटमेंट के बाद रैश हो जाती है। तो दिस इज अ प्रीटी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन ऑफ दिस डिजीज। लेट्स गो ऑन टू द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में एक तो हमारे पास है अच्छा, इसमें थोड़ी डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, खैर ऑलराइट लेट्स जस्ट गो विद इट। मोनोस्पॉट टेस्ट करते हैं, ठीक है। जब ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होती है, तो बेसिकली ये वायरस डोरमेंट तो ये रहता है उसमें बी सेल्स के अंदर, ठीक है, लेकिन असल में जो ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, इट्स कॉजिंग रिएक्टिव टी सेल्स, ठीक है, रिएक्टिव टी सेल्स है। बेसिकली अब हमारे पास ये जो बी सेल के अंदर जा रहा था, उसके अंदर ये उसकी वजह से हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज बन गई। एक्सक्यूज मी, मेरी ना आवाज आज बिल्कुल ही बैठी हुई है, पता नहीं किधर चली गई। हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज बनती हैं, तो ये डिटेक्ट हो जाती हैं विद आइदर शीप्स ब्लड या फिर हॉर्स ब्लड, ठीक है। तो ये अग्लूटिनेट, ये जो आईजीएम हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज होती हैं, ये अग्लूटिनेट कर देती हैं शीप ब्लड को या हॉर्स ब्लड को। अगर ये शीप ब्लड को एग्लूटिनेट कर रही है तो उसको हम कहते हैं पॉल बनल टेस्ट। इसमें लिखा हुआ नहीं है, I'll just write it in the text here. Yep. So there's a Paul Bunel test, ठीक है, that's with the sheep blood agglutination अगर हो जाएगी, और अगर horse blood की agglutination होगी तो उसको हम monospot test कहेंगे, ठीक है। तो ये डिटेक्ट कर रहा है हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज को। और ये डिफ्रेंशिएट भी कर देगा हमारे पास CMV से, क्योंकि ये सिर्फ EBV ये वाली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा रही है, CMV में ये नहीं होगी, ठीक है। तो हेट्रोफाइल एंटीबॉडी या मोनोस्पॉट टेस्ट या पॉल बनल टेस्ट जो है वो नेगेटिव होगा CMV के अंदर और पॉजिटिव होगा EBV के अंदर। उसके अलावा हम लोग एलाइजा भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड there's another thing that you can do initially, जब acute infection होती है ना, तो आपको atypical lymphocytes नजर आएंगे, तो आप blood smear लेंगे, peripheral blood का आपने smear लिया, उसके ऊपर आपको atypical lymphocytes नजर आएंगे, ठीक है। It says reveals lymphocytic leukocytosis with large atypical lymphocytes। तो आपने 3 टेस्ट इसके बेसिक वाले याद कर लेने हैं। एक सेकेंड, let me just move this down। इसके बेसिक 3 टेस्ट हैं स्पेसिफिक फॉर EBV। एक है आपके पास मोनोस्पॉट टेस्ट या फिर पॉल बनल टेस्ट। मोनोस्पॉट में हॉर्स ब्लड यूज होता है, पॉल बनल में शीप ब्लड यूज होता है। एलाइजा कर सकते हैं, उसके अलावा पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, ठीक है। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर जो है एक्यूट जरा इन्फेक्शन को डील कर लेता है, और जो मोनोस्पॉट टेस्ट है वो जरा थोड़ा टाइम लगता है उसको पॉजिटिव होने में। तो इनिशियली अगर ये टेस्ट नेगेटिव भी हो तो you're supposed to repeat it, ठीक है, अगर क्लिनिकल सस्पिशन काफी स्ट्रांग है। उसके अलावा थ्रोट कल्चर भी कर सकते हैं, मतलब फ्रेंजाइटिस अगर है तो थ्रोट कल्चर करके पता चल जाएगा ना कि या फिर कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन तो नहीं बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप के साथ, या वैसे भी मे बी द इन्फेक्शन इज प्राइमरीली बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप, ठीक है। तो जस्ट टू कंफर्म के व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, तो उसके लिए हम थ्रोट कल्चर भी कर सकते हैं। तो जस्ट द मेन 3 आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर इज द monospot test, the ELISA, and peripheral blood smear. ठीक है ना for this. Let's move on to how you would manage it. और अगर ये अगला पेज आ जाए, okay, complications में चाहती हूँ, complications जो है ना आप डेविडसन से ही करें, because इसमें इससे मजा नहीं आया मुझे, ठीक है। Let's just
go to the malignancies. EBV के साथ ये पेज 242 के ऊपर we have this टेबल 11.33, इसको आप देख लें, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन लेट्स जस्ट गो टू द लास्ट सेगमेंट। इसके अंदर EBV एसोसिएटेड मैलिग्नेंसीज लिखी होंगी। हमने ऑलरेडी बहुत पढ़ा है EBV एसोसिएटेड मैलिग्नेंसी, बट हम इसको रिवाइज करें ताकि अच्छा सा पक्का हो जाए, ठीक है। एक तो हमारे पास हॉजकिन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा आएगा। हॉजकिन के अंदर आपको पता है रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं, और जो मिक्स्ड सेलुलैरिटी सब टाइप है ना, वो सबसे कॉमन, इस आप अपनी बुक पे लिख लें कि मिक्स्ड सेलुलैरिटी सब टाइप ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा, उसके अंदर ये सबसे ज्यादा ये वो वाला कॉज करता है। उसके अलावा नॉन हॉजकिन्स के अंदर ये कौन सा कॉज करता है? बर्किट्स लिम्फोमा कॉज करता है, ठीक है। बर्किट्स लिम्फोमा वी ऑलरेडी नो इट्स एसोसिएटेड विद अफ्रीकन डिसेंट, ठीक है। तो इसकी जरा एक आपने वो जियोग्राफिकल चीज याद रखनी है, ठीक है। हो गया, एक हो गया हॉजकिन लिम्फोमा, उसके अंदर मिक्स सेलुलैरिटी सब टाइप सबसे कॉमन थी। दूसरा हो गया नॉन हॉजकिन, नॉन हॉजकिन के अंदर हुआ बर्किट्स लिम्फोमा सबसे कॉमन, ठीक है। इसमें वो T814 वाली म्यूटेशन होती है। फिर आता है हमारे पास नेजोफरेंजियल कार्सिनोमा, और इसके अंदर एशियन एंसेस्ट्री जो है वो ज्यादा उसमें है, ज्यादा इम्प्लिकेटेड है उसमें, बर्किट लिम्फोमा। ओके या ठीक है, बर्किट लिम्फोमा हो गया। अच्छा सॉरी, नेजोफरेंजियल कार्सिनोमा के अंदर वी मोस्ट कॉमनली जो है उसमें एशियन एंसेस्ट्री के जो लोग हैं उनके अंदर नेजोफरेंजियल कार्सिनोमा ये कॉज कर देगा, ठीक है। उसके अलावा वी हैव प्राइमरी CNS लिम्फोमा, ठीक है, और lymphoproliferative डिजीज इन द इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। तो ये आपने इसकी एसोसिएटेड मैलिग्नेंसीज आपको सारी याद होनी चाहिए, बिकॉज ये आई थिंक ये पूछा हुआ था, आई थिंक कॉम्प्लिकेशंस पूछी हुई थी, बट इसके ना MCQ भी आ जाते हैं। उसके अलावा HIV पेशेंट्स में EBV क्या कॉज करता है, मुझे कौन बता सकता है? ये शायद बुक में नहीं लिखा हुआ, मतलब कहीं ना कहीं तो लिखा होगा लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ। Does anybody remember कि HIV पेशेंट्स में EBV क्या कराता है? और फिर हमने उसको डिफरेंशिएट करना होता है किस चीज से? Such a vague question. Okay, oral hairy leukoplakia, ठीक है। तो we did this in a lot of detail जब हमने शायद थर्ड ईयर में पढ़ा था। तो EBV जो है HIV पेशेंट्स के अंदर oral hairy leukoplakia कराता है, और उसको हमने डिफरेंशिएट करना होता है कैंडिडिएसिस से, oral कैंडिडिएसिस से, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, ये आप अपनी बुक में यहाँ लिख लें, oral hairy leukoplakia, बिकॉज फॉर सम रीजन यहाँ मेंशन नहीं है। अच्छा, अब इसकी ये मैलिग्नेंसीज हमने कर ली, हॉजकिन लिम्फोमा, बर्किट लिम्फोमा, नेजोफरेंजियल कार्सिनोमा, प्राइमरी CNS लिम्फोमा, और ये मुश्किल सा नाम लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीज इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज, ठीक है। फिर हम इसकी ऊपर आ जाते हैं इस टेबल के सेगमेंट पे, कॉमन और अनकॉमन इसकी जो है मैनिफेस्टेशंस पे। कॉमन तो हमने देख लिया कि सिवियर फ्रिंजियल एडीमा हो जाता है, ठीक है। इवन इतना एडीमा हो सकता है कि ये रेस्पिरेशन को आपकी इफेक्ट करना शुरू हो जाए, तो उसको रेस्पिरेटरी सपोर्ट ऐसे देनी पड़े, ठीक है। फिर एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड रैश, ये भी हमने देख लिया, उसको गलती से एंटीबायोटिक दे दिया तो उसकी वजह से रैश हो जाएगी, मैक्यूलोपैपुलर। हेपेटाइटिस हो सकता है 80% केसेस में, हेपेटाइटिस हुआ तो सम केसेस में फिर जॉन्डिस भी हो सकता है, एंड प्रोलॉन्ग पोस्ट वायरल फटीग, ठीक है। अनकॉमन इसकी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर थिंक ऑफ ब्रेन, ब्लड, किडनी, हार्ट, ठीक है। ब्रेन, ब्लड, किडनी, हार्ट। ब्रेन के अंदर there's meningoencephalitis, cranial nerve palsies, you just have to remember one from each, I think, brain, blood, kidney, heart. फिर ब्लड के अंदर hemolytic anemia and thrombocytopenia हो जाता है। फिर किडनी के अंदर we'll have interstitial nephritis, and कार्डियक के अंदर myocarditis, pericarditis। रेयर इसकी जो है रप्चर्ड स्प्लीन, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इन पेशेंट्स को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स ना करें वरना आपकी स्प्लीन रप्चर हो सकती है। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो, जो सीवियर फ्रिंजियल एडीमा होता है, तो बहुत कम पेशेंट्स में ऐसे भी होता है, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। एक ग्रैन्युलोसाइटोसिस हो सकता है, एंड देयर इज वन डिजीज कॉल्ड X-linked lymphoproliferative syndrome, इसको कहते हैं डंकन सिंड्रोम, एक फेमिलियल डिसऑर्डर है, तो जस्ट रिमेंबर द नेम। और ये इन्फेक्शन जो है वो बॉयज में होती है, एंड देयर इज नो अदर हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोडेफिशिएंसी। ये जो है जस्ट रिमेंबर द नेम, डंकन सिंड्रोम इज X-linked lymphoproliferative syndrome, ठीक है। तो जस्ट फॉर लाइक एन MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट रिमेंबर दिस, इट्स एक्चुअली क्वाइट रेयर, या। अच्छा, मैनेजमेंट में आ जाते हैं। मैनेजमेंट में
यहाँ से हम ना डेविडसन से करते हैं मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है कि थ्रोट कल्चर के ऊपर अगर बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप अगर मिले तो फिर पेनिसिलिन शुड बी गिवन, उसके अलावा नहीं देनी चाहिए बिकॉज रैश हो जाएगी। ठीक है, अगर फ्रिंजल एडिमा बहुत सिवियर है तो आप शॉर्ट कोर्स जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का दे सकते हैं, उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट आ सकती है। और वैसे इसके खिलाफ हम कोई ऐसे एंटीवायरल ड्रग्स नहीं दे सकते, वो कोई इसके मतलब इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स अवॉइड करनी है एंड दैट्स प्रीटी मच इट। Let's see इसमें क्या लिखा हुआ है। रेस्ट, फ्लूइड्स, अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रेनियस एक्टिविटीज, एनाल्जेसिक्स टू रिड्यूस टेम्परेचर एंड फ्रिंजियल पेन, एनसेड जैसे एसिटामिनोफेन दे सकते हैं। ठीक है, जिसका लाइक जनरल मैनेजमेंट है इसके, सिम्प्टोमेटिक यू कैन से। शॉर्ट कोर्स स्टेरॉइड्स दे सकते हैं अगर एयरवे कॉम्प्रोमाइज है। और स्पोर्ट्स जो है 3 to 4 weeks from onset returns is fine. Okay, yeah, 3 to 4 weeks wait कर लें, ठीक है, before going to your sports. So this was our infectious mononucleosis. ये मुझे पर्सनली बहुत मुश्किल लगता है बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए। So we'll just go on to the question. ये key to UHS से मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, scenario. All right. Question number 7A. 30-year-old male presents with high-grade fever for 4 days. He complains of a sore throat and his cervical lymph nodes were palpable. He was prescribed amoxicillin uh, for thereafter. ये अजीब question लिखा हुआ है. He was prescribed amoxicillin, after which he developed generalized rash over his body. A, what is your diagnosis? B, name 8 complications which may occur in this disease. अच्छा, तो आप देख रहे हैं कैसा सिनेरियो दिया हुआ है। डायग्नोसिस तो पता चल गया है, अब आप मुझे 8 कॉम्प्लिकेशंस बताएं। ट्राई करें बुक को ना देखें। Myocarditis. 1 मायोकार्डाइटिस, ठीक है। Interstitial nephritis. ठीक है। 2 इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। Meningoencephalitis. 3rd. Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma. Yep. 5 हो गई. Yep. स्प्लेनिक रप्चर और भी तो हो सकता है, हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ब्लड से है, किडनी की इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकती है, हार्ट में पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, और ब्रेन में यो साइड के की याद रख लो अभी। एक क्रेनियोनोपैथी और दूसरा मेनिंजोएन्केफेलाइटिस भी हो सकता है। और ठीक है। वैसे जो इसकी कॉमन है वो रैश वाली है, वो जो दी हुई है सवाल में, और हेपेटाइटिस यानी जॉन्डिस, ये 2 भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि लीवर पे भी इफेक्ट जाएगा इसका। या ठीक है, तो इस तरह आपने 8 जो है गिन के याद कर लेनी, क्योंकि वो 8 पूछ चुके हैं, तो इस तरह आप याद कर लें। माय सजेशन वुड बी कि आप ये मेलिग्नेंसीज अच्छे से याद कर लें, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट्स हाई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ। 16-year-old boy presents with fever for 5 days with running nose and puffiness of face. On examination, the temperature is 101 degree Fahrenheit. He has jaundice, palatal hemorrhage, whitish membrane on tonsil, enlargement of lymph node on both anterior and posterior triangles of neck and axilla, macular rash on trunk, and splenomegaly. बहुत कुछ हो रहा है उसको। Investigations में HB उसका 10.5 है, उसके ल्यूकोसाइट्स जो हैं 12,000, और उसमें पॉलीमॉर्फो जो है वो 50% है, लिम्फोसाइट्स 44% है, इओसिनोफिल 3% है और मोनोसाइट्स 3% है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी 2.5 हुई है। डायग्नोसिस बताएं। 3 important investigations related to this disease and 3 steps in management of this disease. फीवर 5 days था, रनिंग नोज, पफी फेस, ठीक है। इनिशियली ना मेम्ब्रेन की वजह से डिप्थेरिया लगता है। हाँ ठीक है, लेकिन उन्होंने जैसे पैलेटल हेमरेज लिखा है, फिर उन्होंने पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की, तो खैर लिम्फेनोपैथी उसमें हो सकती है। मैक्युलर रैश ऑन ट्रंक, स्प्लेनोमेगली, तो दिस इज अ वेरी ट्रिकी काइंड ऑफ सिनेरियो, ठीक है ना। ये वाला मैं ग्रुप में भी भेज देती हूँ, क्योंकि इसके नंबर्स हैं, तो आप उन नंबर्स को देख लें कि व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा चलो, 3 important investigations इसकी क्या हैं? मोनोस्पॉट टेस्ट है, एलिजा है, एंड देन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर पे टिपिकल लिम्फोसाइट्स मिलेंगे।
ठीक है, और उसके अलावा 3 steps in the management. सपोर्टिव केयर है इसमें तो, हाँ तो और उसमें कोई कॉन्टैक्ट लिखते हैं, स्पोर्ट के लिए वो करना, एनाल्जेसिया, फ्लूइड्स और स्टेरॉइड्स देनी बुखार, अगर एंटीपायरेटिक्स। हाँ, सांस का मसला हो रहा है, और काउंसल हाँ करना है कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट लारिंजियल नहीं करना, एडिमा तो उसकी रप्चर हो सकती है क्योंकि उसके स्प्लेन में गिर लिया, तो ये वाली काउंसलिंग भी करनी है उसकी। ठीक है। तो इसको ना 3 में डिवाइड करते हैं। पहला पॉइंट हो गया सिम्टोमेटिक, उसके अंदर आप कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, जो भी सब है। फिर सेकंड हो गया कि अगर उसको फेरेंजियल एडिमा बहुत ज्यादा हो रहा है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो आप उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट वाली एडवाइस। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है ना। तो ये हमने इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। मैं अपनी लिस्ट पे देखूंगा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमने करना है स्ट्रेप स्टैफ। ओके, स्ट्रेप और स्टैफ के लिए वी कैन हैव अ डिस्कशन, क्योंकि हम ये लिटरली हर जगह पढ़ते हैं स्टैफ और स्ट्रेप क्या क्या कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें भी कर रहे होते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट स्टैफ। ये एक टेबल था, where is it? Right here, this one. This is excellent and I think ये हमें बहुत हेल्प करेगा हर चीज में, ठीक है। बाकी पेज अगर डेविडसन में स्टाफ का पेज में ढूंढ के बताती हूँ किधर गया है। इट्स ऑन पेज 250, यहाँ से स्टाफ वाले इन्फेक्शन शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टैफिलोकोकस causes a lot of infections around the body, ठीक है। तो we can start from, where do we start from? स्किन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्किन के अंदर ये folliculitis कर सकता है, furuncles, carbuncles, impetigo कर सकता है, and then it has this other syndrome called a scalded skin syndrome. तो scalded skin syndrome में क्या होता है कि इसका एक टॉक्सिन रिलीज होता है, which basically causes like desquamation of the skin, you can say. तो वो स्किन जो है वो पील ऑफ होना शुरू हो जाती है। तो यू जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम, ठीक है। उसके अलावा वूंड इन्फेक्शंस, ये सबसे कॉमन कॉज है सर्जिकल वूंड इन्फेक्शंस की। तो आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे इन्होंने लिखा होगा, हाँ, सर्जिकल वूंड इन्फेक्शन की सबसे कॉमन कॉज है स्टाफ ऑरियस अलोंग विद द ग्राम नेगेटिव रॉड्स। फिर अगर डायबिटिक अल्सर है कोई, तो उसकी भी मोस्ट कॉमन कॉज है स्टाफ ऑरियस अलोंग विद द ग्राम नेगेटिव रॉड्स एंड द एनारोड्स एज वेल, ठीक है। आईवी जो कैथीटर साइट सेप्सिस है, ये इनफैक्ट मैंने काफ़ी कैन्युला रिलेटेड इस तरह इन्फेक्शंस देखे हुए हैं। तो इसमें स्टाफ ऑरियस और स्टाफ एपिडर्माइटिस हर प्रोस्थेटिक चीज़ के अंदर जाके घुस जाता है, ठीक है। हमारे स्किन का नॉर्मल कमेंसल है, और ये जब भी आप अंदर कुछ प्लास्टिक की चीज़ डालते हैं, उसको वहाँ उसको जाके चिपकना होता है बायोफिल्म बना के, ठीक है। सेल्यूलाइटिस के अंदर अगेन वी हैव स्टाफ ऑरियस, और साथ में अब वो भी आ गया हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है। एंड देन नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस को हम देख चुके हैं, क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंजिस मोस्ट कॉमन कॉज है। उसके बाद वी हैव ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। अच्छा, अब कैथीटर जो इन्फेक्शन होगी हमने देखना है कि उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो ये पेज 251 पे लिखा हुआ है कैन्युला रिलेटेड इन्फेक्शन। अच्छा, कैनुला सबसे मतलब सिनेरियो यही आएगा कि पेशेंट जो है उसकी सर्जरी वगैरह हुई और समथिंग। पेज इज 251 ऑफ फॉर दिस। एक सेकंड में स्टेप अप का पेज भी देख लूं। स्टेप अप का पेज है 413, ठीक है। ओके, वेयर वर वी? अच्छा, एक्सक्यूज मी, हम इसके लिए एक स्कोर करते हैं, उसको हम VIP स्कोर कहते हैं, विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस। यू डोंट हैव टू नो दिस स्कोर बिट बाय बिट, बट आपको इसका नाम पता हो, ठीक है, कि ये स्कोरिंग करते हैं। उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि जो आपने प्लास्टिक की चीज जो डाली है, कैन्युला है, कुछ भी है, उसको आपने निकाल देना है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स लगा देनी है। इन्होंने लिखा हुआ है कि कैन्युलर रिमूवल एंड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट विद फ्लूक्लॉक्सासिलिन, ठीक है। फ्लूक्लॉक्सासिलिन देनी है। अगर आपको लग रहा है इट्स मर्सा, तो आपको ग्लाइकोपेप्टाइड दे दें, फॉर एग्जांपल वैंकोमाइसिन या टेकोप्लानिन जो है। वैंकोमाइसिन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्लाइकोपेप्टाइड फॉर मर्सा, ठीक है। तो ये आपका स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन रोक देगा। तो आपने क्या करना है कि कैन्युला रिमूव कर दिया और आपने साथ में एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे दी, ठीक है, IV।
तो ये जो है it should improve the issue. All right. This was it for IV catheter site infections. फिर cellulitis का सबसे common cause Staph aureus और streptococcus दोनों है. We did that already. Okay, फिर we have something called staphylococcal toxic shock syndrome. इसके कुछ main keywords I want you to remember is एक तो ये tampons के साथ highly associated है, intravaginal tampons के साथ. Also हमारे setting में ये जो gauze नहीं रख देते, जैसे rhinoplasty की और gauze रख दी अंदर, या किसी भी जैसे surgical site में gauze रह गई अंदर, ऐसा हो जाता है. तो क्या होता है कि एक साइट, एक इसका क्या कहते हैं, इसके टॉक्सिन का नाम है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन. हाँ, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है, और ये जो है एक साइटोकाइन स्टॉर्म जो है उसको ट्रिगर करता है. ठीक है, इट एक्ट्स एज अ सुपर एंटीजन. ये कीवर्ड याद रखने, सुपर एंटीजन, साइटोकाइन स्टॉर्म वो करेगा, उसकी वजह से there will be high fever and there will be like a systemic issue. ठीक है, like headaches हो रहे हैं, sore throat हो रहा है, vomiting हो रही है, rash हो जाएगी पूरी body के ऊपर. ठीक है, erythematous blanching rash. तो इसकी ट्रीटमेंट और उसके साथ साथ डिस्फॉर्मेशन ऑफ द स्किन भी शुरू हो जाती है, एंड इवन पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर में भी जा सकता है. ठीक है, तो इसके ये डायग्नोसिस का क्लिनिकल है, और इसको जो इशू कॉज वाला ऑर्गेनिज्म था ना, उसको आपने एक तो जैसे गॉज अगर पड़ी हुई थी तो गॉज को निकाल लिया. ठीक है, उसके अलावा आपने उसकी रिससिटेशन करनी है, फ्लूइड्स वगैरह लगाने हैं सारे. ABC यहाँ आप अप्लाई करने बेशक, या सिर्फ फ्लूइड रिससिटेशन लिख दें. ठीक है, फिर आपने उसको एंटीबायोटिक्स देने हैं. एंटीबायोटिक्स में आप देंगे फ्लूक्लॉक्सासिलिन, या फिर अगर आपको लग रहा है फिट्स मर्सा में भी, तो यू गिव वैंकोमाइसिन. और उसके अलावा आप क्लिंडामाइसिन भी देते हैं. ठीक है, क्लिंडामाइसिन इज अ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, और ये आप देते हैं ताकि जो टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है वो थोड़ी उसकी प्रोडक्शन कम हो जाए. ठीक है, और सिवियर केसेस में हम IV इम्यूनोग्लोबुलिन भी देते हैं. ठीक है, तो ये इसका बेसिक ट्रीटमेंट है. हमारी सेटिंग में अगर ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम आएगा ना, तो वो इसी तरह आएगा कि गॉज रह गई कहीं बहुत देर तक सर्जरी के बाद. ठीक है, फिर we have our streptococcal infection. स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो है, अच्छा मुझे बताएं, जो स्टैफ ऑरियस है वो किधर का नॉर्मल कमेंसल है, और स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो किधर के नॉर्मल कमेंसल्स हैं बॉडी में हमारी? स्टैफ तो नोज का है ना, स्किन पे और नोज पे नॉर्मल होता है. एग्जैक्टली. एंड स्ट्रेप गट में होता है. हाँ, गट एंड ओरोफेरिंक्स. ठीक है, ओरोफेरिंज बिल्कुल ठीक हो गया. ऑलराइट, तो ये सबसे कॉमन कॉज है बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस का. ठीक है, तो ओवर हियर यू कैन सी फ्रेंजाइटिस का एक तो वायरल भी लिखा हुआ है, और साथ में ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकाई भी मोस्ट कॉमन कॉज है. फिर we'll move on. ये बहुत सारी चीजें कर रहा है. अगेन पेज 253 पे there's a whole like table of the bunch of things it's doing. ठीक है, but mainly we're going to look at scarlet fever because ये मैंने उसमें देखा था, important topics में scarlet fever लिखा हुआ था. तो ओके, व्हाट इसके कुछ की वर्ड्स हैं जो मैं चाहती हूँ आप याद रखें. एक तो ये स्कारलेट फीवर जो है मोस्ट कॉमन है स्कूल एज वाले चिल्ड्रन के अंदर. ठीक है, और इसमें इनकी जो टंग है वो रेड एंड स्वोलन हो जाती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉबेरी टंग. तो ये उसका एक कीवर्ड आपने आता है, स्ट्रॉबेरी टंग. और इसमें भी अगेन रैश हो जाती है और डिस्कॉमेशन ऑफ स्किन शुरू हो जाती है. And there is petechial lesions in the antecubital fossa जो reside कर जाती even after it's over. तो इसको हम कहते हैं Peystia's sign. ठीक है, तो इसकी पिक्चर यहाँ बनी हुई है on the next page. आपकी Peystia's sign. ठीक है, cubital fossa में जो है एक petechial वो lesions वो रह जाती हैं after the disease is over. इसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं IV benzyl penicillin, या फिर हम oral penicillin दे देते हैं, symptomatic measures depending on severity of disease. ठीक है, तो ये इसका बेसिक याद रखने वाली चीजें थी. यंग चिल्ड्रन, स्कूल एज मोस्टली, रैश होगी और स्ट्रॉबेरी टंग हो जाएगी. और जो रैश जो एंटीक्यूबिटल फोसा में जो है पेटिकल लीजन्स छोड़ जाएगी, उसको हम कहते हैं पेस्टियस साइन. इसकी ट्रीटमेंट है IV बेंजाइल पेनिसिलिन, या फिर अगर ऑरली दे रहे हैं तो पेनिसिलिन प्लस सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट. ठीक है,
तो ये हो गया स्कारलेट फीवर। फिर जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो भी एक टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करता है। इट्स प्रीटी सिमिलर टू द वन दैट वी स्टडीड इन स्टेफिलोकोकस, ठीक है। उसकी भी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होगी, वही फ्लूइड रिससिटेशन करनी है। बस इसमें ये कि जो आप एंटीबायोटिक्स हैं वो इंस्टेड ऑफ जो वहाँ पे फ्लूक्लोक्सासिलिन दे रहे थे, तो इंस्टेड ऑफ दैट आप यहाँ पे बेंजाइल पेनिसिलिन दे रहे हैं। अगेन आप क्लिंडामाइसिन भी दे रहे हैं, अगेन आपको आईवी इम्यूनोग्लोबिन भी शायद लगाना पड़े, ठीक है। तो ये इसकी ओवरव्यू था जो बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए फॉर दिस स्पेसिफिक दीज बैक्टीरिया। तो अब हम इस बड़े मजे से टेबल को देख लेते हैं, बिकॉज आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड समरी जो हमें पता होनी चाहिए। अक्यूट ब्रोंकाइटिस का सबसे कॉमन कॉज वायरल होता है। अक्यूट साइनोसाइटिस अगर हो जाए तो उसका कॉज, अच्छा लेट्स लुक एट स्ट्रेप न्यूमो एज वेल। स्ट्रेप न्यूमोनिया 4 चीजों का सबसे कॉमन कॉज है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट दोस 4 थिंग्स आर? वैसे तो कर वो काफी चीजें रहा होता है, बट 4 निमोनिया, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, आई डोंट नो, दो तो पता है कि निमोनिया और मेनिंजाइटिस करता है। हाँ, फ्रिंजाइटिस, स्ट्रेप थ्रोट। ठीक है, तो देयर इज दिस निमोनिक मॉप्स, ठीक है। ये स्ट्रेप न्यूमो के लिए ही है। तो इट्स द फर्स्ट वन विद एम इज मेनिंजाइटिस, ठीक है। मेनिंजाइटिस के बाद ओ से ओटाइटिस मीडिया, पी से निमोनिया और लोबार निमोनिया करता है ये, ठीक है। और एस से साइनोसाइटिस। तो आई जस्ट राइट दैट डाउन ताकि उससे जरा याद करना इजी हो जाएगा। एम ओ पी एस। Strep pneumo is the most common cause of meningitis, otitis media, pneumonia और ये लोबार निमोनिया है, community acquired, ठीक है, और साइनोसाइटिस। तो ये 4 चीजें तो आपको कम से कम याद हों, ठीक है। ऑलराइट, तो इधर हम आ जाते हैं अक्यूट साइनोसाइटिस में इन्होंने स्ट्रेप न्यूमो भी लिखा हुआ है, राइटली सो, बिकॉज मैंने अभी आपको निमोनिया भी बताया। फिर क्रॉनिक के अंदर स्टैफ ओरियस एनारोब्स आ जाते हैं। अच्छा, एंडोकार्डाइटिस की बात करते हैं। आई डिडंट मेंशन दिस, आईवी ड्रग अब्यूजर्स के अंदर जो है एंडोकार्डाइटिस की कॉज जो है, एक तो सब एक्यूट के अंदर वी हैव स्ट्रेप विरिडेंस, ये तो हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं। अक्यूट में जब हमारे पास कोई आईवी ड्रग अब्यूजर होता है तो हम स्टैफ ओरियस का सोचते हैं, ठीक है। ग्राम नेगेटिव रॉड्स वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन स्टैफ ओरियस का सोचते हैं। एंड स्टैफ ओरियस हार्ट की किस साइड को अफेक्ट करेगा, लेफ्ट या राइट, कौन से वाल्व को? नाइस, बिल्कुल राइट साइडेड एंडोकार्डाइटिस कर देगा, ठीक है। उसकी प्रेजेंटेशन टाइम में डिफरेंस होता है एक्यूट और सब एक्यूट की। अब मुझे इस डेज उसमें याद नहीं है, और इंटेंसिटी ऑफ इन्फेक्शन में भी। और ये भी तो फर्क होता है कि ऑलरेडी डैमेज्ड है कि नहीं है। जो स्टैफ ओरियस वाला होता है ना, जो आईवी ड्रग अब्यूजर, उनमें मतलब वो इतना एक्यूटली होता है कि वो नॉर्मल वेल्व को भी डैमेज कर देता है। और जो सब एक्यूट होता है वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा पार्शियली का कुछ डैमेज्ड टाइम नहीं वाल्व, होता। ठीक है। ऑलराइट, फिर प्रोस्थेटिक वाल्व में मैंने आपको कहा था एनीथिंग प्रोस्थेटिक दैट गोज इनटू द बॉडी, स्टाफ एपिडर्माइटिस को वो पसंद है, ठीक है। फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस, we already looked at all these, salmonella, shigella, E. coli, blah blah blah. और हमने क्या मिस कर दिया? हाँ, निमोनिया हम लोग करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लेकिन यहाँ बिकॉज टेबल इतना अच्छा है तो इसको हम देख लेते हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में जो टिपिकल निमोनिया, एक तो स्ट्रेप न्यूमो उसकी सबसे कॉमन कॉज है, फिर एच इन्फ्लुएंजा, एम कैटरालिस, फिर एटिपिकल में हमारे पास माइकोप्लाज्मा, क्लेमिडिया, लीजेनेला आ जाते हैं। अच्छा, नोजोकोमियल में स्टैफ ओरियस दोबारा आ गया, ठीक है। तो सिनेरियो कैसे आएगा कि आपके पास पेशेंट है, उसको ऑलरेडी फॉर एग्जांपल कोई वायरल इलनेस हुई हुई है, ठीक है। तो वायरल इलनेस या कोई भी उसकी इलनेस की वजह से हॉस्पिटल आया, हॉस्पिटल स्टे में, और फिर उसको निमोनिया हो गया, तो स्टैफ ओरियस इज वन ऑफ द causative organisms. फिर ग्राम नेगेटिव रॉड्स में वी हैव मोस्ट कॉमनली क्लेब्सिएला होते हैं, एंटेरोबैक्टर, सिरेशिया, ये वाले ना कॉमनली कॉज करते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। फिर एस्पिरेशन निमोनिया में ऑल दी ओरल एनारोब्स हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव रॉड्स, अगेन स्टैफ ओरियस आ गए। एस्पिरेशन निमोनिया इज कॉमन, यू नो, जिसको कोमा हो, जिसका सीएनएस डिप्रेशन हो वगैरह। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ई कोलाई
is the most common. फिर second is Staphylococcus saprophyticus, और ये females के अंदर होता है mostly because ये हमारी जो canal का normal commensal भी है, तो this causes a lot of क्या कहते हैं UTIs. तो अगर मेल पेशेंट है तो आप इसको जरा इतना टॉप पे नहीं रखोगे. फिर हमारे पास ये क्लेप्सियला एंट्रोकोकस वो सब. Osteomyelitis again, osteomyelitis and septic arthritis में मोस्ट कॉमन कॉज हमारे पास स्टैफ ऑरियस की आती है. ठीक है, तो स्टैफ ऑरियस बहुत मसले कर रहा है. स्टैफ ऑरियस, ऑस्टियोमाइलाइटिस और सेप्टिक आर्थराइटिस में भी मोस्ट कॉमन कॉज में आ रहा है. उसके अलावा वी हैव ऑल दीज अदर वंस एज वेल. ठीक है, अगर एडोलेसेंट्स में इन्फेक्शन है तो आप गोनोरिया को सस्पेक्ट करेंगे. उसकी प्रेजेंटेशन ही अलग होती है, तो उसके फिर आपको इजीली फिगर आउट हो जाएगा. ठीक है, तो दिस वाज इट फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस. अगर कुछ रह गया हो तो यू कैन लेट मी नो, बट आई थिंक हमने सारे मेन इंपॉर्टेंट वाले कवर कर लिए हैं. बस हमने टीबी छोड़ा था. आई थिंक टीबी उसमें कर लेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में. वो भी मैंने ही करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो फिर अच्छे से कवर हो जाएगा इंशाल्लाह. ठीक है, तो इंशाल्लाह I'll see you guys the next time I have a topic. आज we'll continue. I think आज वो है साइकाइट्री करनी है. तो do you guys have any questions? Do you guys want to discuss anything? Yes, I have 2 questions. Sure.